ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر پہلے میرے بچے نے آپ سے کہا تھا سپاہی ہوں بریلی کا، یہ مت سمجھو کہ بچہ ہوں، اور میں بھی آپ کے سامنے اسی کے شعر کو دہرا دوں، سپاہی ہوں بریلی کا، یہ مت سمجھو کہ میں بوڑھا ہوں۔ محترم حضرات، دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ سے مسلسل خاص طریقے سے جو بزرگان اہل دین ارنی کے اندر رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کا یہ صدقہ اور نتیجہ ہے کہ مسلسل مجھے 10 جنوری تک پروگرام میں ہی رہنا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ بھوک لگ گئی، بریانی کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایسے انجیکشن دوں گا کہ بریانی بھی آپ بھول جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12ویں شریف کا دن ہے۔ صبح ہوئی جامع مسجد چوک سے لے کر ماہور چوک سے لے کر مبارک میاں کے قدموں تک، یہی تو سنیوں کی پہچان ہے کہ ہم سر اٹھا کے تو چلتے ہیں، مگر سر جب ہمارا جھکتا ہے تو بزرگان دین کے قدم ہوا کرتے ہیں۔ بچہ بولا، بوڑھا بولا، جوان بولا، گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام بولی، کیا بولی؟ تنکا نہ دیں گے ہم کسی مقصد کے واسطے، تنکا نہ دیں گے ہم کسی مقصد کے واسطے، ارے مانگو تو جان دیں گے محمد کے واسطے، مانگو تو جان دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جامع مسجد چوک سے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں لہراتے ہوئے جھنڈے، کتنے خوبصورت۔ ہر انسان دیکھ کر یہی بولا، ارے دوست تو دوست، دشمن بھی اندر سے یہی بولا، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ محترم حضرات، آپ جب جلوس لے کر چلے، دنیا یہ پوچھتی ہے جلوس کہاں ہے؟ بہت پتے کی بات دے رہا ہوں، انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ارے ہم سے پوچھنے والے اس رب سے پوچھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صبح نکلے، اور جب نکلے تو جلوس اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ ساری دنیا یہ کہہ اٹھی۔ کوئی بولا سرکار کی آمد مرحبا، کوئی بولا داتا کی آمد مرحبا، کوئی بولا آقا کی آمد مرحبا، ساری دنیا نعرے لگائے آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا۔ اور کان سے سنو، امام احمد رضا کے مسلک میں کان لگا کر سنو، دل کی پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ جب ساری دنیا کہہ رہی تھی سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، عرش اعظم سے ساری کائنات میں یہ آواز گونجی، پروردگار عالم کے ارے محبوب کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا۔
अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आइए मैं आपके सामने एक चीज अर्ज करता हुआ चलूं, एक एक चीज इंशाअल्लाह आपको हदीस के जरिए से। ये कितना खूबसूरत स्टेज है, सजाने वाला भी जन्नती है, बैठने वाले भी जन्नती हैं, और स्टेज का सजाने वाला ही जन्नती नहीं है, खुदा की कसम रसूल की महफिल में आने वाला हर इंसान जन्नती है। आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूं, ये स्टेज कितना खूबसूरत है। दुनिया हमसे पूछती है इतना खूबसूरत स्टेज, इतने खूबसूरत स्टेज पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अरे क्या तुम्हारे आका मदीने से तुम्हें देख रहे हैं, क्या तुम्हारे आका आए हैं? और एक बात याद आ गई तो मैं आपके सामने बयान कर दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो, मैं जिस जमीन पर रहता हूँ उस जमीन के पावर को आपके सामने बयान कर दूं तो मदीने का पावर खुद ही आपको मालूम हो जाएगा। दुनिया ये पूछ रही है, आज दुनिया के कोने कोने में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है, और दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां मनाया ना जाता हो। अगर आप हमसे पूछें कि मक्का में मनाया जा रहा है कि नहीं, मैं कहूंगा हाँ हाँ मक्का में मनाया जा रहा है। मक्का वाले अगर जश्न ईद मना ना सके तो खुदा की कसम हजरत जिब्राइल का जुलूस काबे की छत पर उतरा हुआ है, देखने के लिए आंख चाहिए। आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं, एक शहर है जिला बरदा में जिसको आरवी कहते हैं, आरवी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ से ही कर रहा हूं। आज बात आ गई तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी दूसरे इंसान के साथ इतनी बड़ी बात होती न मालूम उसके लिए कितने स्टेज लगाता। आरवी शहर है, आरवी शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 7 मस्जिदें हैं, और 7 मस्जिदें सुन्नियों की हैं। एक मस्जिद ओलापुर की है जिसमें मैं तकरीर करने के लिए गया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब तकरीर करने के लिए गया, ओलापुर से आप जिस जगह बैठे हुए हैं जामा मस्जिद कितनी दूर है, लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि ओलापुर मस्जिद और शहर की जामा मस्जिद के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है। मैं ओलापुर में तकरीर कर रहा था, मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद के अंदर मौलाना नसीब तकरीर कर रहे थे। वहां पर एक मजदूब बुजुर्ग रहते थे, दुनिया जिनको मस्तान शाह बाबा के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। तकरीरें दोनों तरफ चालू थी, जामा मस्जिद में वहां के इमाम मौलाना नसीब साहब तकरीर कर रहे थे, ओलापुर की जामा मस्जिद में मैं तकरीर कर रहा था। और जब तकरीरें चलती रही, एक बुजुर्ग आए और कहने लगे मस्तान बाबा आए, कहते हैं मौलाना नसीब खामोश हो जाइए। कहा हुजूर क्यों? कहा सुनो, अरनी बाबा कंबल पोश की नगरी से आने वाला एक मेहमान आया है, आने वाला एक मुकर्रिर आया है, बोलने वाला एक खतीब आया है। आज हमें उसकी तकरीर सुनना है, आपकी तकरीर नहीं सुनना है, आज हमें उसके बयान को सुनना है। मौलाना नसीब ने कहा हुजूर ठीक है। मौलाना नसीब बैठ गए, और बैठने के बाद सारा मजमा आया। मैं तकरीर कर रहा था, मैंने देखा मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मजमा आया। आने के बाद जब वो मेरे सामने बैठ गए, मैं तकरीर करता रहा। मेरी जब तकरीर खत्म हुई, मौलाना नसीब खड़े हुए और उन्होंने कहा सुनिए हजरत, बात ये है हम तो आपकी तकरीर नहीं सुन सकते, लेकिन ये हजरत हमें लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ कि आरवी की जमीन पर रहने के बाद एक बुजुर्ग का आलम ये है कि वो ये जान रहा है कि आने वाला कहां से आरवी से आया है। तो क्या हमारे मदाका मदीने से ये नहीं देख रहे दीवाने कहां से आए हैं, दीवाने कहां से आए हैं, परवाने कहां से आए हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अगर आर्मी का पावर ये है तो अल्लाह की कसम मदीने के जलवे कैसे होंगे, मदीने के जल्लाद कैसे होंगे। आओ मैं आपके सामने एक एक चीज बयान करूं। इसी स्टेज की बात कर रहा था, स्टेज सजाने वालों ने सजा दिया, स्टेज बनाने वालों ने बना दिया। खुदा की कसम बनाने वाले ने स्टेज बनाया, डालने वाले ने शामियाना डाला और अरनी की गली गली को सजा दिया। अरे सुनो, तुमने अरनी की गली को नहीं सजाया है, तुमने अपने ईमान को सजाया है, तुमने अपने ईमान को सजाया है, इसलिए कि हमने दुनिया के अंदर गलियों को सजाया है। खुदा की कसम रब ने तो अपने महबूब की खातिर जन्नत को सजा दिया है, जन्नत को बना दिया है। आओ मैं आपके सामने अर्ज करूं, खाना-ए-काबा है, खाना-ए-काबा के करीम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, सहाबा का झुर्म उठे, बीच में मेरे आका बैठे हुए हैं। और आप तसव्वुर कीजिए कि जिस महफिल में नबियों का नबी बैठता होगा उस महफिल की रौनक कैसी होती होगी, उस महफिल का जलवा कैसा होता। अरे जो नामे नबी पर महफिल सजा दी जाए उसकी रौनकों का ये हाल है तो जाते नबी की महफिल कैसी होती होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। खाना-ए काबा के पास में एक खातून आई, अपने आप को पर्दे में लपेटे हुए चली आई। अल्लाह अकबर, आने वाली आ रही है, चेहरे पर नकाब है, जिस्म पर नकाब पड़ा हुआ है, मुअद्दबाना कदम से खाना-ए काबा की तरफ आ रही है। मेरे आका बैठे हुए हैं। आका की निगाह उठी, क्या देखा कि आने वाली आ रही है। लोगों ने नहीं देखा कि आने वाली कौन है। आका फरमाते हैं सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। अरे सुनो, खड़े रहकर हम सलाम पढ़ते हैं, ये भी हमें नबी ने बताया है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाया करो। अल्लाह अकबर, आने वाली खातून आई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आने वाली खातून के लिए खड़े हो जाओ। सारे लोग खड़े हो गए और जब लोग खड़े हो गए आका ने अपनी चादर को उठाया, अपने कांधे से लिया। कौन सी चादर? अल्लाह अकबर, जिस पे फरिश्तों की नूरानियत कुर्बान है। कौन सी चादर? जिस पे सिद्दीक की सदाकत कुर्बान है, उमर की अदालत कुर्बान है, उस्मान की सखावत कुर्बान है, मौला अली की शुजाअत कुर्बान है। अरे सारे दुनिया के आशिकों की मोहब्बत जिस चादर पर कुर्बान है वो मेरे नबी ने चादर को उठाया, उठाने के बाद बिछा दिया। आप इरशाद फरमाते हैं बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, वो खातून बैठ गई। अल्लाह के नबी ने धीरे से इरशाद फरमाया ऐ मेरी माँ हलीमा ये बता दो, ऐ मेरी माँ हलीमा ये सहाबा बैठे हैं, इनको मेरी पैदाइश के कुछ वाक़ियात बता दो, कुछ मेरा जिक्र कर दो। अल्लाह अकबर, मालूम क्या हुआ आपको? पैदाइश नबी के लिए हमने जो स्टेज बनाया है, अरे ये तो लकड़ी का स्टेज है। वहां मेरे मुस्तफा ने जन्नत की चादर को बिछा दिया था कि ईद मिलादुन नबी इसी को कहते हैं। अल्लाह अकबर, हलीमा बैठकर कहने लगी बेटा जब तुम पैदा थे, बेटा जब पैदा हुए थे तुम्हारा हाल ये था, तुम्हारा हाल वो था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो खातून निकल कर चली गई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया साहबियों मालूम है ये आने वाली कौन है? ये मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया था। आओ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। मेरा नबी अपनी उस माँ की इतनी इज्जत करता है जिसने दूध पिलाया है, तो पैदा करने वाली माँ की कितनी इज्जत करता होगा मेरा नबी। आज का हमारा नौजवान जश्न ईद मिलादुन नबी से ये दर्स लेकर जाए। हमारे नौजवान कितने हैं, कुछ औरतें ऐसी आती हैं जो ये कह देती हैं, अल्लाह आते हैं ये कहती हैं आलिम साहब को ऐसा तावीज दे दीजिए कि एक मर्तबा मेरा बेटा मुंह भरकर ये कह दे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, नबी के नाम पर जलसे करने वालों, एक तुम्हारी माँ है जो इसलिए घर में तड़प रही है कि तुम उसको माँ कहने के लिए तैयार नहीं हो, और ये हमारा नबी है कि अपनी माँ के लिए चादर बिछा रहा है। अल्लाह अकबर, बता दूं आपको, और पैदाइश नबी के वक्त पर माँ के लिए चादर बिछा दी मेरे नबी ने, और जब हम पैदाइश नबी का दिन मनाते हैं तो वही चादर हमारे सरों पर रहमत बनकर झूम जाया करती है, झूम जाया करती है। हाल ये हुआ करता है जितनी जहन्नमी है वो जन्नत में नजर आया करते हैं, जन्नत की बहारें कुर्बान हो जाया करती हैं। एक वक्त दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस एक बात मैं आपके सामने और अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा रहेगा। और बात यह है कि अभी खतीबो इमाम मेमन मस्जिद वालों ने कहा था दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। यही तो करम है बरेली वालों का, जहां पर बरेली का सिक्का चलता है वहां पर सुन्नियत के बागात ऐसे ही लहलहाया करते हैं। सुनो, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, ये इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, इनका यह हाल है कि दुनिया किसी इमारत के अंदर बैठ कर कोई नारा भरा करती है, मगर मसलके आला हजरत वाले भरे मैदान में कोई नारा भरा करते हैं। आओ मैं आपके सामने अर्ज करूं, एक एक चीज, चाहे झंडा हो, चाहे शामियाना हो, चाहे स्टेज हो, चाहे खाना खिलाना हो, चाहे गरीबों को कपड़ा बांटना हो, ऐन इस्लाम है और यही कुरान का हुक्म है। इसलिए कि खुदा ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आज भी यही कहते हैं और जब तक के जान है यही कहते रहेंगे कि जश्न ईद हमने मनाया है और हम मनाते रहेंगे, हम हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह हम सबको ये तौफीक रफीक
کہ مولا ہم ایسے پروگرام کرتے رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یا حبیبی مرحبا